my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Students, in our last video lecture, we have discussed the structure of Europe before the emergence of nationalism all over the Europe. I hope students you have seen that video. If not, then do check that out. So for today's video, we are going to discuss the role of liberals in achieving nationalism socially, politically and economically. So without any further ado, let's get started. So students, as you can see in the slide, the ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यूरोप का जो स्ट्रक्चर था उसमें एरिस्टोक्रेट सबसे डोमिनेंट पोजीशन पे थे एंड उनको हर तरह की प्रिविलेजेस बाय बर्थ प्रोवाइडेड थी एंड उन्हीं सब चीज़ों के अगेन न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुए एंड एजुकेटेड लिबरल्स का ग्रुप बना जिन्होंने यूरोप में फॉर द फर्स्ट टाइम अपने लिए स्टैंड लिया और लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग भरी. So students, early 19th century में liberals आए and they tried to raise their voice against the aristocrats and लोगों के मन में उन्होंने nationalist feelings लाई. Liberalism एक Latin word से derived हुआ है जिसका मतलब है free, freedom. So students, जो liberals होते थे वो खुली सोच के होते थे, equality and democracy जैसी चीज़ों पे believe रखते थे. So students, for the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. So ये equality में believe करते थे, freedom में believe करते थे. And apart from this, politically, liberals emphasize the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism has stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. So student, यहाँ तो बात हो गई थी हमारी सोशली कि लिबरल्स जो थे वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम देने में बिलीव रखते थे. इसके अलावा स्टूडेंट, अगर हम पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे देखें तो ये लिबरल्स रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में बिलीव रखते थे एंड ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट होते थे एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे यकीन रखते थे. इसके अलावा स्टूडेंट्स, लिबरल जो थे उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी की बात की, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर रखने की बात करी जिससे कि कोई मिसयूज़ ना करे. उन सब चीज़ों पे इन्होंने बल दिया या स्ट्रेस दिया. हाउएवर स्टूडेंट्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. Universal suffrage means right to vote. So as you can see in the slide, you will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code or Civil Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor subject to the authority of fathers and husbands. So student, जैसा कि अभी आपने स्लाइड में पढ़ा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ ज़रूरी नहीं कि सबके लिए एक जैसा हो. यूनिवर्सल सफरेज सबके लिए एक जैसी हो. यूनिवर्सल सफरेज, एज आई सेड अर्लियर, राइट टू वोट होता है. अगर हम एग्जाम्पल लें फ्रांस का, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट किया था ऑटोक्रेसी के खिलाफ और डेमोक्रेसी को अचीव करने की बात करी थी. बट उस टाइम पर भी ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो, जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी है वही जो लोग हैं क्या करेंगे, एलिजिबल होंगे वोटिंग के लिए. और विमेन को तो हमेशा ही इन्फीरियर या कम समझा गया है मेन के कंपैरिजन. तो इस वजह से जो विमेन है और जो लोगों के पास अपनी लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों को पॉलिटिकल राइट से वंचित रखा, डिप्राइव्ड ऑफ रखा. एंड नेपोलियनिक कोड आने के बाद तो वैसे ही जो स्टेटस था विमेन का वो माइनर था और अधीन था अपने फादर्स एंड हस्बैंड के अंडर.
So, students, throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. तो जितनी भी women थी और जिन लोगों के पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, उन लोगों ने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मांगने की डिमांड करी एंड ऑपोजिशन मूवमेंट चलाए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक स्फीयर की अगर हम बात करें तो देखिए स्लाइड में, in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. So, student होता क्या था, अगर हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करें, इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे बात करें, तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। गवर्नमेंट क्या करती थी, स्टेट क्या करती थी, इम्पोज करती थी, रिस्ट्रिक्शंस कुछ थोप दिया करती थी कि फ्री कैपिटल गुड्स वगैरह की मूवमेंट नहीं होगी, टैक्सेस लगा दिया करती थी। तो ऐसे केस में क्या था, जो फ्री फ्लो ट्रेड होता था वो नहीं हो पाता था। ट्रेडिंग जो होती थी आपस में कंट्रीज़ के बीच में, वो फ्री फ्लो नहीं हो पाता था। इस वजह से बहुत ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते थे मर्चेंट्स को। एंड स्टूडेंट, जो सबसे मेन समस्या थी वो क्या थी, देखिए स्लाइड में। Let us take an example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measures. सो जो नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, मेजर्स थे, वो इस तरीके से निकले थे कि जो 39 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ थी उनकी यूनियन से बने थे। एंड जितनी भी 39 स्टेट्स थी उसमें हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का अपना करेंसी होती थी, अपने वेट्स एंड मेजर्स होते थे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी रेट्स वगैरह को। कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था रेट का, चीज़ों का। तो देखिए आगे। For example, a merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods, as each region had its own system of weights and measures. This involved time-consuming calculation. The measure of cloth, for example, was the L, which in each region stood for a different length. So student, अगर हम मर्चेंट की बात करें, अगर हम 1833 के टाइम की बात करें, तो अगर कोई मर्चेंट है हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग की तरफ जा रहा है अपने गुड्स बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी, उसको टैक्स पे करना पड़ता था। एंड इसका हर एक जो चीज़ होती थी वो काउंट होती थी वेट एंड मेजरमेंट के हिसाब से, और हर रीजन का अपना वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम होता था। इस वजह से ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता था। सो इस सारी चीज़ों में क्या होता था, मर्चेंट को काफ़ी ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मर्चेंट है वो अपने कपड़े बेचने जा रहा है कहीं जगह पे, अगर सपोज़ हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग में वो कपड़े का जो लेंथ है और वेट और मेजर के हिसाब से 500 रुपीज़ है, तो न्यूरमबर्ग में क्या होगा, वो 700 भी हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती थी। एंड कस्टम ड्यूटीज़ पे करते करते और इतना सारा टैक्सेस वगैरह पे करने से मर्चेंट के लिए फ्री फ्लो ट्रेड करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो स्टेट थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। तो ऐसी सारी कंडीशंस को देखते हुए जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो कभी फ्लरिश नहीं कर पा रही थी। तो देखिए फिर क्या हुआ। सो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. तो जितनी भी वर्किंग क्लास थी, कमर्शियल क्लासेस थी, जो मार्केट और प्रोडक्शन वगैरह में इन्वॉल्व होती थी, उन लोगों ने क्या आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा कि ये जो यूनिफॉर्म रेट वगैरह नहीं है, इसको सबसे पहले हमें चेंज करना चाहिए। हमें एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनानी चाहिए जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो पाए, गुड्स, पीपल एंड कैपिटल का आदान प्रदान हो पाए फ्रीली, कोई कस्टम ड्यूटी ना हो, कोई टैक्सेस पे ना करने हो, कोई भी स्टेट रिस्ट्रिक्शंस ना हो हम पे, और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो फ्लरिश कर पाए। तो स्टूडेंट, इन्हीं सब ऑब्स्टिकल्स को, इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स को, बैरियर को हटाने के लिए क्या हुआ,
1834 में कस्टम यूनियन बनी, या आप उसको कह सकते हो ज़ोलवेरेन बनी। किसके इनिशिएटिव पे बनी? प्रूशिया के इनिशिएटिव पे बनाई गई थी और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था। तो देखिए स्लाइड में, इन 1834 अ कस्टम यूनियन और ज़ोलवेरेन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। द यूनियन, जो यूनियन बनी थी कस्टम यूनियन, ज़ोलवेरेन बना था, उन्होंने क्या किया? द यूनियन एबॉलिश्ड, एबॉलिश मतलब ख़त्म करना, द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज। तो यूनिफॉर्म रेट होना स्टार्ट हो गया, जितने भी टैरिफ बैरियर्स वगैरह, कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, टैक्सेस वगैरह लगते थे, करेंसी अलग अलग थी, वेट एंड मेजरमेंट्स अलग अलग थे हर रीजन के, इन सबको क्या कर दिया गया? यूनिफॉर्म रेट पे लागू करवा दिया गया, यूनिफॉर्म रेट पे डिक्लेयर कर दिया गया। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। Apart from this, the creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे सबके सिमिलर थे, हर कोई चाहता था कि इकोनॉमिकली जो उनकी कंट्री है वो प्रॉस्पर हो, वेल्दी हो, ग्रो करे, और जो भी रेलवे का नेटवर्क वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को मजबूत किया गया, जिससे कि जो मोबिलिटी थी, जो मूवमेंट थी कैपिटल की, गुड्स की, पैसेंजर्स की, लोगों की, वो चालू हो गई। एंड इससे क्या हुआ? जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को आधार मानते हुए, उसका बेस बनाते हुए, जो वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे वो लोगों के अंदर और भर गए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा आज का टॉपिक। So that's all for today's video. If you have enjoyed today's video lecture, then do subscribe to my channel, hit the like button, press the notification bell. I will see you next time. Till then, take good care of yourself. Bye bye.